he has an extremely busy schedule, and despite all of that, at very short notice, he accepted this invitation, and he's here with us for the launch of the book itself. Coming to the book itself, there are several things to say about it. I'll keep it as short as possible. First of all, I would say a book that reflects some of the value that the author himself deeply espouses. First is intellectual rigor that the book, it's not a wishy-washy book, it's a serious book, and it reflects a deep sense of engagement, both academic as well as institutional, and Dr. Ashwin Fernandez has reflected that in the book. Second, it also reflects a conscious sense of intellectual integrity. Sometimes when we end up thinking and talking about the past, it's so easy to get carried away. So Dr. Ashwin Fernandez has consciously, made it a point to ensure that intellectual integrity is maintained while he reflects about the past and also talks about the present and the future. The third aspect is that it has a very, I would say, good mix of celebration as well as introspection, both of which I think is very critical as we look at the future. Celebrating several things that have happened in the past, not just the ancient past, but also even the recent past, but also a deeper sense of introspection as to what could have been the failings and what we should do to make it better and indeed the future. And another remarkable thing about the book is that it's just 125 pages, and he has covered a great journey of past, present, and the future in a very, relatively small number of pages. Now, I'm a lawyer, I'm a law professor. We are used to reading judgments which are 1,000 pages long, and to actually figure out what that judgment says can be an extremely difficult task. And even as authors, it is not uncommon to find extremely voluminous books. But what Ashwin has done in in a relatively smaller number of pages, he has captured an extraordinary history and journey and evolution of Indian heritage. So, to quickly reflect on this, I should add that sometimes in our discourse, we fail to see the glory of our past, and sometimes we fail to see the hope beyond the destruction and the deterioration that has happened. This can lead to an ignorant mindset with a tendency to blame and to never learn from the past. Reading through Ashwin's book, one goes through a tide wave of emotions in just a matter of 130 pages. It is no easy task to condense centuries-old, vibrant history of Indian higher education into a small, accessible, deeply grounded book. We witness the glory of ancient education system, its status, its evolution, its challenges with the British civil service, coaching center approach to education, our attempts at rebuilding after independence, battles with access, equity and inclusiveness, and of course, keeping up with the knowledge economy. Now, what are the major takeaways? First, it talks about systematic and systemic colonization. We're all familiar with India's colonial past, but sometimes our textbooks, unfortunately, end up having a very rather misplaced sense of history. A few years ago, Dr. Shashi Tharoor wrote an amazing book which talked about the idea of, it had a title of An Unglorious Past, a critical reflection of the British Empire. That was, of course, more general, but what Ashwin has done is to focus on education. Just 50 pages in the book, we witness the rise and fall of Indian higher education legacy, and in subsequent pages, we can trace the reverberations of the colonialization in holding back the diversity of India. In the fervor of Indian independence history, the higher educational history of India gets lost in between our struggle for freedom. Ashwin also has given a succinct background to the role of higher education, the student boycotts and setting up of new universities that occurred in the midst of the freedom struggle. It also provides a very, very comprehensive overview of the institutions that were set up immediately after independence and how they continue to shape and play a significant role in the future of institutional building. The second major aspect which he has also talked about is women's education and status. In several indices that measure women's status, such as the Gender Inequality Index, India has consistently been ranked in the lower rungs. In Ashwin's book, we are seeing
several glimpses of women's status in relation to access to education. It is astonishing to read that India was home to the first co-educational universities as early as 10th century BC in Takshashila, but deteriorated to perpetuate customs which may not be in the best interest of the status of women. In fact, women's education received an impetus as abolition of other things. Race, India extend that, and I quote, if you educate a man, you educate an individual, educate a woman, you educate a family, unquote. It is pertinent to remember that India can never reach the heights of excellence if the potential of half of the population is not utilized. As Ambedkar so rightly put, and I quote, I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved, unquote. The third big theme that the book has covered is its tryst with world-class institutions. From the Vedic period, we were attuned to creating knowledge and to the cost of world-class institutions being built as institutions of excellence. The independent India, that is during the time of Takshashila and Nalanda, and post-independent India in 1947, we have been consistently putting efforts to excel in our higher education sphere. IIT Kharagpur, set up in 1946, inspired a nation's imagination to build the future. As India was left with ruins, a shortcut to accelerate Indian institutions to the highest pedal in a captivating sentence. World-class institutions. That I have has in HEIs. The fifth, which is something towards the end of the book, he talks about the glimmer of hope. Behind every chapter of the turbulent history of India, there is a glimmer of hope. It is time we look at the other side of the coin and derive the good from what is perceived as a disadvantage. We have been condemned time and again for our ever-increasing population, but as institutions like World Bank observes, India's GDP can grow by 2% every year if India can effectively utilize its human capital. By reconfiguring our higher education system, we are already on the path to become a knowledge economy, moving into a knowledge society. Other initiatives by the Honorable Prime Minister's government, as well as the Education Minister's effort, such as Make in India, Digital India, and other things have also been covered in the book. Towards the end, the book gives a very strong hope for the future of India. It talks about the policy-making agenda that the NEP has evolved and how these policies, I believe, will be shaping the future. I want to end by saying that the book all through reflects Dr. Ashwin Fernandez's own personal commitment and dedication to the development of an India that will engage with the world at large. As we know, we are a 1.4 billion people, but Ashwin is also conscious of the fact that in this large population, over 900 million people are less than 35 years of age, when most parts of the Western world, including China and Japan, in expectancy was approximately 35, and today it is 71. Conscious efforts to create this not only but the future of the world. In that sense, the book is truly remarkable and futuristic. A last critical comment is that I wish he would have had more space
to dwell upon some of the recent public policy initiatives, including the NEP's efforts to implement it, since it's been over 2 years since we have implemented NEP. But I'm sure those aspects of the evolving nature of NEP will be part of another volume that I hope he will write, which will once again reiterate the future of Indian higher education. With those words, I want to congratulate Dr. Ashwin Fernandes for producing such a passionate book with so much of hope, aspiration, while remembering the past and imagining the future. Thank you very much. Thank you, Professor Rajkumar, for those critical review. अब हम सब पुस्तक विमोचन के लिए श्री माननीय शिक्षा मंत्री जी और विशिष्ट अतिथियों गण को आमंत्रित करते हैं. We will now formally release the book by unveiling the book as well as we request the eminent guests to now formally release the book. This one is easy. They have not put any tight lumps. Can we have a round of applause for the book, please? I thank again our distinguished guests and the Honorable Minister. अब मैं डॉक्टर पंकज मित्तल को अपने खास विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ. We will now listen to specialist views from Professor Dr. Pankaj Mittal. Thank you very much. Namaskar, pranam, a very good evening to all of you. माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय former chairman of NAC, Professor V.K. Chauhan ji, the celebrated author of the book, Ashwin Fernandes, Dr. Ashwin Fernandes, the Vice Chancellor of O.P. Jindal Global University, very dynamic Dr. Rajkumar, ladies and gentlemen, a very good evening to all of you. सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस को फॉर द लॉन्च ऑफ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑन ए वेरी वेरी रेलेवेंट थीम. सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल्सो थैंक्स टू डॉक्टर अश्विन कि उन्होंने मौका दिया कि मुझे इस बुक का फॉरवर्ड लिखने के लिए. So thanks Ashwin for giving me an opportunity for writing the forward of this book. And जैसा कि अभी डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि this book पूरा जर्नी ट्रैवर्स किया जैसे फ्रॉम नालंदा टू एनईपी, नालंदा से लेके एनईपी तक इस बुक में सब कुछ है. नालंदा से शुरू होती है एंड इट टेल्स कि नालंदा 4th सेंचुरी बीसी में बनी थी और जब 7 AD में नालंदा में कितने करीब 2000 टीचर्स थे, 10,000 स्टूडेंट्स थे. और उस समय जो स्टूडेंट्स थे कहाँ से थे, चाइना से, इंडोनेशिया से, कोरिया से, जापान से, पर्शिया से, टर्की से. और वो क्या पढ़ने आते थे हमारे देश में? बुद्धिस्ट स्टडीज़, फाइन आर्ट्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स, एक्ट्स ऑफ वॉर. सो इस तरह का समृद्ध हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम था उस समय पे. धीरे सेंचुरी चल गई, बहुत सारे इन्वेजन्स हुए. 16th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स आए. धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने एक प्लान स्ट्रैटेजी के तहत हमारी पाठशालाएं ख़त्म की, हमारे गुरुकुल ख़त्म किए. रादर एक कंटेम्प्ट पैदा किया लोगों के बीच में कि इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम से ज़्यादा अच्छा है ब्रिटिश हायर एजुकेशन सिस्टम. टू द एक्सटेंट कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय हमारा जो लिटरेसी रेट था वो था 12%. आज 78% है, पर उस टाइम 12% लिटरेसी रेट था, जो कि समृद्ध माना जाता था.
सो दिस वाज द इफेक्ट। और उसके बाद बहुत सारा कुछ हुआ कि 7 के बहुत सारे नायक और बहुत सारी पॉलिसी आई, 1968 की आई, 1986 की आई, पर जो ये 2020 की नेशनल पॉलिसी है NB 2020, दिस वाज अ पॉलिसी जिसको कहते हैं कि इट ब्रॉट ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन द हायर एजुकेशन इकोसिस्टम। बहुत सारी इसकी जो रिकमेंडेशंस थी, एवरीबडी नोज अबाउट द रिकमेंडेशंस की, मल्टीडिसिप्लिनैरिटी की बात की कि 64 कला संपूर्ण एजुकेशन, जो हमारे शुरू में हमारे इतिहास में बताया जाता था कि हमारी शिक्षा 64 कला संपूर्ण थी। वो 64 कला ये नहीं था कि सिर्फ एक डांस म्यूजिक, उस 64 कलाओं में म्यूजिक भी था, डांस भी था, और मेडिसिन भी था, और इंजीनियरिंग भी था, आर्किटेक्चर भी था, सभी तरह की कलाएँ थी। इस तरह का एजुकेशन सिस्टम था। हमारे NEP के बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं जो कि बाहर के लाइक बहुत सारी हमारी मीटिंग्स होती हैं फॉरेनर्स के साथ भी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी। सो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू NEP कि हमारा ABC क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है, हाउ यू आर गोइंग टू प्रमोट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, हाउ यू आर डूइंग दिस क्रेडिट फ्रेमवर्क। सो बहुत सारा लोगों के बीच में उत्साह है, और किस तरह से NEP में कहा गया कि कैसे इंटीग्रेट करना है हायर एजुकेशन सिस्टम में इंडियन नॉलेज सिस्टम को। लाइक 2 दिन पहले ही हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की बात हो रही थी। तो ये बहुत अच्छी तरह से निकल के आया कि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स अगर हमें अपनी यूनिवर्सिटी सिस्टम से मिलाना है तो उसको एक अलग से पेपर या अलग से कोर्स करके नहीं आएगा, उसको सभी पेपर्स में हर एक में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, केस स्टडीज़ की तरह, एग्जाम्पल्स की तरह, जिससे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम हमारे जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक आत्मसात हो सके, उसमें एक तरह से समझ में आए लोगों को कि हाँ, अवर स्टूडेंट्स शुड बी प्राउड ऑफ इट, जिसको हम कहते हैं कि ग्रैंड इंडियन नैरेटिव। एक ग्रैंड इंडियन नैरेटिव क्रिएट करना पड़ेगा दैट हमारे बच्चों को ये they should be proud of India because of its rich Indian cultural heritage, not because of Bollywood or not because of cricket. I mean, जो इतना we have education system, world best minds are produced which are working as a global CEOs in many countries, like whether you talk of Sundar Pichai or Satya Nadella or Leena, and so many of them are there. पर एक चीज़ जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहती हूँ, जो कि एक नई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है, दैट इज़ G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया। और जब ये G20 प्रेसिडेंसी आई है वो ऐसे ऑपरच्यून मोमेंट पे आई है कि G20 नेशंस आर द नेशंस जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर हम ग्लोबल रैंकिंग से जाएं तो मैक्सिमम हाईएस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ इन G20 कंट्रीज़ में हैं। तो नाउ दैट वी हैव द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 नेशंस, व्हाट वी फील इज, एंड वी हैव सेंट ए प्रपोजल एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू दैट द ministry has also agreed to that proposal, that we should be having an event in which we call these G20 universities to our country. One, to learn from each other. It will be a collaborative effort because they are all good universities, but also to showcase Indian higher education system to them, because many times what happens is that they feel that Indian higher education system is not that good, they don't have many good higher education institutions. So we want to showcase the Indian higher education system to them, and when these G20 nations sit together और आपस में बातचीत करके जो नया निकलेगा कि कैसे एक ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबल एजुकेशन होना चाहिए, उसके ऊपर जब बात करेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा होगा। तो हम उस पर काम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि G20 नेशंस में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको लिखें कि आप आइए। वी आर प्रपोजिंग ए इवेंट इन पुणे and then eventually in Delhi, and in between those two big events we are proposing कि वो G20 nations के जो वाइस चांसलर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स हैं, they should be visiting the best universities of the country। तो मुझे लगता है कि ऐसा होगा तो जो हम नॉलेज सुपरमेसी की बात करते हैं, तो दैट नॉलेज सुपरमेसी will go a long way. World will know about India and they will know that what is happening in India and they will appreciate and they will send it by word of mouth। इसी में एक जो दूसरा प्रपोजल हमने दिया था, that was we know that India is going to lead the world in future. India is going to be the Vishwa Guru in future. So one proposal which we gave, I don't know whether it will be agreed or not, when we talk of Fulbright. So Fulbright is a fellowship scheme which started in 1946 and right now there are around 3.25 lakh Fulbright ambassadors. तो वो जो अमेरिकन हायर एजुकेशन सिस्टम के वो एम्बेसडर्स की तरह काम करते हैं। इसी तरह एरास्मस मुंडस था 1987 में शुरू हुआ, तो आज की डेट पे 80,000 एरास्मस मुंडस के फेलोज हैं। दे आर ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दे आर यूरोप को पूरा उनके ब्रांड एम्बेसडर्स की तरह काम करते हैं। इसी तरह से
अगर हम अपनी नॉलेज ऊपर में दिखाना चाहते हो तो हमें दुनिया आके हमारे बारे में बोले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट रहेगी, इफ़ वी कैन इंस्टीट्यूट ए फेलोशिप ऑफ दिस टाइप लाइक फुल ब्राइट और एरास्मस, मे बी 5,000 fellowships every year. So by the time we finish this Amrit Kal of 25 years, by the time the India turns 100, we'll be having 1,25,000 scholars who will be promoting India's higher education, who will be the brand ambassadors of India world over. So I think, we are proposing this. Let us see if it is agreed or not. So finally, I will again congratulate Ashwin कि आपने इतना अच्छी किताब लिखी है, and it is a very good book, and it talks about India as education as a soft power for making knowledge diplomacy. Thank you very much. Thanks, Ashwin. Thank you. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मित्तल. अब हम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान के खास विचारों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करते हैं. माननीय मंत्री श्री प्रधान साहब, राज, पंकज, अश्विन, मैं अश्विन को कुछ 10 साल से जानता हूँ. मुझे यही जानता हूँ अश्विन बात बहुत अच्छी करता है, मगर मुझे नहीं मालूम था अश्विन लिख भी अच्छा सकता है. एंड आई have a suspicion Ashwin will be standing in this room many times after this. अश्विन ने जो किया ये बहुत पहले होना चाहिए था, मगर इसने बहुत संत, जैसे राज ने कहा कि बहुत कंसाइज वे में येट वेरी कोहेरेंट वे ही इज प्रेजेंटेड. मैं इसको जहाँ किताब ख़त्म हो रही है वहाँ से आगे की बात करना चाहता हूँ. वी हैव एवरी रीज़न टू बी proud of and bask in the glory of our ancient tradition, the way we educated, the way we taught the whole world. But I think it probably will be a little bit misplaced if we didn't see who are and what we are competing, who we are competing with, how education is given, how knowledge is created, of course how knowledge is accessed. All that has changed. And I think Ashwin, in the next book, that is something I think we should capture, that things are very, very different. While we stay rooted into what we've done well in the past, we should, and you've looked at that. In fact, you looked at how things are deteriorated. I wouldn't entirely blame this or that person, but I think from 20 university to 1,200 university, from 200 colleges to 50,000 colleges, is a thermodynamically unstable system. It's an amazing expansion, and India should be proud of it. And I think all of us are proud of it. We're having 3.8 crore people in higher education. I think even China, people say China is number one. I think in sheer number, India is number one right now of the number of people we teach. But I'll just focus a minute in quality. And the NEP, which to my mind is yet to kickstart. It has to kickstart and it has to capture a couple of things. And I'll give you some very brief quantitative numbers. And there is a narrative which is, I hear in many meetings that to start NEP, which is to my mind one of the finest things that has come out, that NEP can be started just as we are. Today we said NEP and tomorrow we can start NEP. I think we need to reconsider that. NEP is an ambitious plan, and therefore it requires very ambitious, very careful planning, sitting down across the table, listening to the voices which are not similar to the voices which might create a narrative. It's very easy to implement NEP. It isn't easy to implement NEP. I don't think we should gloss over that. But it should be implemented. And once it's implemented, I think we will be looking at one of the finest education system in the world. What do we need? Let me just give you a figure. And I'll be very brief. I'll just take 2 more minutes. NEP or before that, Kothari Commission or before that any commission has always maintained, and the President of India, when introduced NEP to all of us in the COVID time, said, and you can see that tape again, that all this will not function if India did not spend 6% of GDP. You might think I'm arguing
put 6% of GDP, then only NEP will start. I'm not saying that at all. But I'm just pointing out that if we were to compete, and to my mind, if China thinks it's competition only with America, I feel our competition 30 years from now, 40 years from now, is only with China. I think we have to look China straight into his eyes, whether it's internationalization of education or whether it is opening medical school or attracting students. I say that's where our competition lies. It doesn't lie in the left or south or Argentina or Brazil or South Africa. China spent 2.7% of its GDP on R&D. It is a 17 trillion economy right now. We spend 0.7% of GDP and our economy is about 3.3 trillion. Now, research, knowledge creation is expensive. Good quality knowledge creation comes at a cost. And I think we should review that notion that a whole lot of things can be done just by going left and right. It doesn't happen like that. I'm looking at something which Government of India recently started, hugely ambitious, extremely beneficial, very good, one nation, one subscription. That will be dream come true of the part of NEP. And those kind of initiatives have to be very significant. Imagine every college, every university, every institution in India having access to the much needed whatever references they want to look at a click of a mouse. That will be power of NEP. But it will cost. It won't come without any cost. So my only plea with Ashwin, myself and others, is really also to get real about where the competition, what do we expect a university today, university of yesterday or university of day before yesterday were very different. Today universities are supposed to produce skilled people, they have to look after whether our rankings are in place or not, how much research should we do, how much teaching we should do. It's not easy to be a university anymore. And all that tension needs to be captured. My final comment would be, the research in India is still based, when I say research, is really knowledge creation. And most part of ranking is science research, unfortunately. Is the money that you need to spend on creating a world-class structure. And in case of India, we are still very much embedded in the Russian model, not British model, Russian model. That we have institutes in ICMR, we have institutes in DST, DBT, etc., fairly good facilities, a lot of good research paper comes. India is number 3 in producing research publications. We publish about 2 lakhs publication per year. China publishes 7 lakhs. US publishes 6 lakhs. So our eyes have to be clearly focused. The very absolutely last comment is the collaboration between university. Foreign university can come when they want to come. We can collaborate with them when we want to do. What about collaboration within the country? We have excellent private universities. We have very good government institutions. Just search for yourself. And Ashwin, you should look at it. It's not in your book anywhere. Why we are shy of collaborating. If I work in Oxford, I'm doing structural biology, I just have to pick up a phone and make a call that I don't have this, can you give it? How much collaboration, for example, JNU would do with Delhi University, or Delhi University would do with Jamia, or Jamia would do with Aligarh? I think we should probe this. We probably are missing what we can do so much better. NEP envisions this. So I would just finish what I want to say is by that we need to figure out the more money is necessary condition, it is not sufficient condition. Just because otherwise Saudi Arabia would have the best universities in the world. So we need to find leaders who will be able to wade their way through when the money is being available, but money would be needed. प्रधान साहब को मैं पहली बार मिला हूँ इन पर्सन. मैं इसलिए बिल्कुल ये कहना चाहता था कि ये मौका बिल्कुल हमको गंवाना नहीं चाहिए.
मैं यहाँ से खड़ा होकर कहूँ कि हमें कोलैबोरेशन करना चाहिए तो कोलैबोरेशन नहीं हो जाएगी। मैं ये सुनता हूँ कि हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, पर मेरे कहे से एटीट्यूड बदल नहीं जाएगा। इसके लिए हमको एक्शन प्लान चाहिए। वी कांट फोर्स कोलैबोरेशन, but we must have collaboration. That's why Chinese universities are doing, Peking universities, Chinese are 8 universities in top 100. So I'll just leave it at that. And but thank you very much, Ashwin, for asking me here. But you have many more books to write. Thank you very much. Thank you, Dr. Chauhan, for your decisive views. अब मैं मुख्य भाषण के लिए आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को आमंत्रित करती हूं। मंत्री महोदय का सहयोग हमारे लिए विशेष प्रोत्साहन का कारण है और हम श्री प्रधान जी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिनंदन करते हैं। द कीनोट एड्रेस बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्कार। यूजीसी के पूर्व चेयरमैन आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, एआईयू के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर पंकज मित्तल जी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के फाउंडिंग वाइस चांसलर प्रोफेसर सी राजकुमार जी, और आज की इस कार्यक्रम की मुख्य केंद्र बिंदु सूत्रधर मेरे मित्र डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस जी, जिन्होंने 39 साल में पहला किताब लिखा है। मैंने धीरे से उनको पूछा, थोड़ा किताब को मैंने देखा और पूछा कि अश्विन जी आपकी उम्र क्या हुआ? न 39। और उनको आज चौहान साहब ने आशीर्वाद दिया। और एक अच्छे टीचर ये कभी नहीं कहता कि तुमने अच्छा नहीं किया, ये कहा जाता है कि और अच्छा करो, और अच्छा कर सकते हो। इसीलिए मैं अश्विनी जी को एक मित्र के नाते, भाई के नाते, प्रोफेसर चौहान की उस अपेक्षा को हम सभी की ओर से दोहराता हूँ। आपका ये पहला किताब नहीं होनी चाहिए, ये किताब शुरुआती है और आपने हिम्मत दिखाई एक ऐसे विषय से अपना विचार को भविष्य के लिए और वर्तमान तथा भविष्य के लिए पीढ़ी परिवर्तन की कामों में प्रेरित करने के लिए भारत की ज्ञान परंपरा की महत्व, सुप्रीमासी एक मेरे दृष्टि से थोड़ा अधिक बात हो जाता है। भारत की ज्ञान परंपरा कभी किसी की ऊपर सुप्रीमासी दिखाने के लिए तो कभी नहीं था। भारत की ज्ञान परंपरा दुनिया को संभालने के लिए दायित्व लिया है। इसीलिए हमने इस बार भी G20 की थीम बनाया है वसुधैव कुटुंबकम। जो समाज पूरा विश्व को, पूरा मानव को एक परिवार मानता है, वो किसी के ऊपर सुप्रीमासी नहीं दिखा सकता है। इसीलिए मैं एक किताब की रीडर के नाते अश्विनी जी, आपको ये मेरा ओपिनियन है, मेरा निजी ओपिनियन है। नथिंग टू शो, डोंट हैव टू शो एनीबॉडी सुप्रीमेसी। हम भारत की लोग जब आदि अनंत काल से अब तक उत्तर और समाधानी समाज की लोग हैं और हमारी ज्ञान के आधार पे हमने इसको किया है। इंडिया डीप इनटू इंडिया इज ए नॉलेज सोसाइटी। दुनिया को अगर आज के समय में 21वीं सदी में हम लोग थोड़ा बहुत समझने का कोशिश करते हैं, परखते हैं, तो सभी समय में सभी ने कहा नॉलेज इज द लाइट, एजुकेशन इज द अप्लाइड पार्ट ऑफ नॉलेज। ये सभी के आधार पर समाज की गति निरंतर रही है। और आपने, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, शुभेच्छा देता हूं, आपने इकोसिस्टम के बारे में हिम्मत की है, एक विचार लिखने जितना किताब
मैं समझने का कोशिश की। बुक रीडिंग भी की। अश्विनी जी, राजकुमार जी अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने उनको पहले दी दिया किताब, तो उन्होंने उसको पढ़ा और उसको हम सभी को थोड़ा मौका दिया समझने का। लेकिन मैंने जितना पढ़ा, अश्विनी जी, उसमें और बहुत चीज रह गया है, और बहुत चीज रह गया। लेकिन आपको बधाई तो दे ही रहा हूं इस अच्छे अटेम्प्ट के लिए। लेकिन मैं अगर 2-3 विषय को कहूं कि भारत की ज्ञान परंपरा की कोई प्रमाण मिलती है तो वेद से मिलती है, उपनिषद से मिलती है, जिसकी आयु तिलक जी ने कहा कि लगभग 8000 साल पुरानी। ऐसे भी विचारक है जो कहते हैं और पुरानी है। और जिस वेद में, उपनिषद में ज्ञान की सभी आयामों के ऊपर कहते हुए विषय को उल्लेख किया, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स या एआई जैसे नहीं है। ब्रह्मांड की सारा आयाम में रहने वाले लोगों वही है इंडिया नॉलेज सिस्टम। इसलिए इसमें विज्ञान था, चिकित्सा, साहित्य था, एस्ट्रोनॉमी था, फिजिक्स था, जियो फिजिक्स था। सारा विद्याओं की समूह को भारतीय ज्ञान परंपरा की अंतर्गत कहा जाएगा। और ये प्रमाण, अगर मैं एक उदाहरण दूं, अभी विश्व की शासन प्रणाली जो एक सामाजिक विषय है, सामाजिक अर्थनैतिक, उसको आज आधुनिक यूनिवर्सिटी की भाषा में पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, एक कम्युन मॉडल भी हो सकता है, कुछ लोग चलाएं, सभी के चलाएं, या एक विमर्श के एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से समाज की चिंता करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाए, जिसकी नाम गणतंत्र है, प्रजातंत्र है। और सभी ने माना है कि शासन प्रणाली में डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे। इसको मॉडर्न, सिविलाइज, साइंटिफिक अनेक उपमा इसे दिया गया है। और उस डेमोक्रेसी का उत्पत्ति कहां हुई? अगर वेद उपनिषद को हम पढ़ते हैं तब उसमें सभा की कल्पना है, विमर्श की बारे में चर्चा है। ये सभा विमर्श एक यूनिटरी रिजिम पे नहीं रहती है, एक डिक्टेटोरियल मॉडल में नहीं रहती है। 4 लोग जहां बैठ के चर्चा करते हैं वहां सभा होती है और विमर्श होती है। यानी भारत गणतंत्र की जननी है, जिसके आगे 4th सेंचुरी तमिलनाडु में तंजावुर जिले में एक शिलालेख में एक पंचायत की कल्पना कैसे होगा, चुनाव कैसे होगा, उसकी परिचालना कैसे होगी, अगर वहां एक गड़बड़ी हुई तो उसको निकालने की व्यवस्था क्या रहेगी, ये सारे के बारे में वर्णन किया गया है। अभी अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में चुनाव की नतीजा आया। कुछ लोगों को चुनाव हारना हजम नहीं हुआ तो कैपिटल में घुस गए। अभी अभी ब्राजील में वही घटना हुई। लेकिन भारत में ये तो होते रहता है, चुनाव हारना जीतना जाना उसको माना जाता है। ये आज की विषय नहीं है, ये सदियों से चली है, क्योंकि भारत स्वभाव से प्रजातांत्रिक है। महिला शिक्षा के बारे में इस किताब में लिखा गया है, विश्वविद्यालय के बारे में उल्लेख किया गया है, गुरुकुल के बारे में उल्लेख किया गया है। मैं मानता हूं कि आज जब हम G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिला है, विश्व ने, भारत ने क्या काम किया देखिए। प्रधानमंत्री जी की विचार को देखिए। G20 में 20 देश हैं और 9 देशों को हमने
इस बार स्पेशल इनवाइटी करके बुलाई है। 29वां 5-7 इंटरनेशनल एजेंसियां उसमें जुड़ेंगे, यानी 35-40 तक गवर्नमेंट और एजेंसी दोनों मिलकर इकट्ठा आएंगे। विश्व के बड़े लोग आएंगे, पावरफुल लोग आएंगे, ग्लोबल ऑर्डर इसी में से निकलेगा। 15 वर्टिकल पे चर्चा होगी, अर्थनीति से लेके श्रम शक्ति तक, शिक्षा से लेके पर्यावरण तक सभी में चर्चा होगी। विश्व की वाणिज्य के बारे में चर्चा होगी। हम वर्ल्ड ऑर्डर की इस साल की दायित्व भारत लेगा, नेतृत्व करेगा। भारत क्या किया, प्रधानमंत्री जी ने विश्व की ग्लोबल साउथ को बुलाया। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने अखबारों में देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी की लीडरशिप को बुलाया और कहा कि भाई विश्व में हमारे वहां इस बार G20 हो रहा है, इसमें आपकी सुझाव क्या है। वसुधैव कुटुंबकम 29 देशों में नहीं बन सकती है, या धनी देशों के अंदर चर्चा को सीमित रखने से नहीं होती है। विश्व के सभी मानव के बारे में चर्चा करना है तो हम सभी को पूछना पड़ेगा, सभी की आकांक्षा अपेक्षा को प्रतिफलन करना ही पड़ेगा। उतने में हम अटके नहीं। 6-7 विभागों की मंत्रियों को काम दिया गया कि आप छोटे छोटे ग्रुप में उन देशों के लोगों से शिक्षा में क्या होगा, स्वास्थ्य में क्या होगा, अर्थनीति कैसे होनी चाहिए, विदेश नीति कैसे होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी कैसे बने, सबकी सुझाव लो। ये भारत की ज्ञान परंपरा के कारण ही जब हमें मौका मिला, हम अपने अपने में चीजों को सीमित नहीं किया। विश्व की चिंता क्या कोई जरूरी नहीं था। उरुग्वे की नेतृत्व को पूछना कोई जरूरी नहीं था कि आपके वहां क्या होना चाहिए बताओ, हम अभी G20 में चर्चा करें। उनकी भी अपेक्षा नहीं था, या G20 की प्रोटोकॉल में नहीं था। यह भारत की ज्ञान परंपरा की एक उदाहरण मैंने आपको बताया। ऐसे एक विषय बहुत गहरा है। आज के अवसर पे जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं सभी को आह्वान करता हूं, इस पे चर्चा हो, इस पे और किताबें आए, उसमें निबंध आए, एसेज आए, डिबेट हो, ओपेड आए, पक्ष विपक्ष सभी की विषय में चर्चा हो। मैं इसकी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे नहीं जाता हूं, समय की अपना एक मर्यादा है। एक विषय मैं कहूंगा, आगे 21वीं सदी में इस ज्ञान परंपरा को हम हमारी आवश्यकता और विश्व की आवश्यकता, ये दोनों को सॉल्यूशन देने के लिए कैसे काम पे लाएं। भारत की कुछ इनहेरेंट कैपेसिटी है जिसको नियति ने आगे बढ़ा रहा है। समय के चक्र में कभी हम लंबे समय तक पराधीन रहे, हजारों साल पराधीन रहे और आखिर के 300 साल लगभग ब्रिटेन के गुलामी के अंदर रहे, जिसकी आजादी का 75 साल हम अभी मना रहे हैं। उस समय में हमने 2014 में हमारी इकोनॉमिक स्टैंडिंग 10th था, 10th ग्लोबल इकोनॉमी हम थे। आज हम 5th हुए और यूके को सरपास करके हुए हैं। ये तो नियति है। ऐसे तो कोई कह नहीं सकता कि जब हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस बना रहे होंगे उसी समय में हम कोई प्लान करके यूके को ही, हम कभी 7th से 8th हुए होंगे, किसी को टपे होंगे, कोई चर्चा नहीं हुई थी। कभी हमने 7th से 6th हुए होंगे, हमें तो याद नहीं हम किसको सरपास किए। लेकिन आज हमको एक मौका दिया है, हम जब 6th से 5th हुए यूके को ही सरपास किए। यह कोइंसिडेंट है। आज विश्व भर में आपके परिवारों में जो लोग विदेश में रहते होंगे, आप उनको आज पूछिए आपके वहां डाटा की प्राइस क्या है और भारत की डाटा की प्राइस क्या है। भारत तेजी से दुनिया की डिजिटल हॉटस्पॉट बन रहा है। कोरोना के समय में हमने जितना सरकार की सुविधा दिए, लगभग डिजिटल गेटवे में दिया। लगभग कोविन ऐप लगाए, आप टीका लगाए तो कोविन ऐप में हमारी सर्टिफिकेट आ गया। आज भारत की दुनिया की 100% की डिजिटल ट्रांजैक्शन की
40 भारत में ही होती है। भारत की डिजिटल अडेप्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजी अडेप्टेबिलिटी दुनिया के लिए आकर्षण की केंद्र बना हुआ है। दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है जो भारत में आना नहीं चाहता है, आइदर इस मार्केट में आना चाहता है, नहीं तो इस मार्केट की, इस सोसाइटी की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को ग्लोबल बिजनेस में अडॉप्ट करना चाहता है। यह भारत की इमर्जिंग रियलिटी है। भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित इमर्जिंग एरिया में हम कैसे अपना पोजीशन बनाएंगे। अश्विनी जी के बारे में कई एक्सपेक्टेशन रखा गया, मेरे एक्सपेक्टेशन रहेगा इंडियन नॉलेज सिस्टम, नेट सुप्रीमेसी अश्विनी जी, ये कैसे 21st सेंचुरी में ग्लोबल हेरिमोनी के लिए काम पे आएगा, एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं, धनी होने के लिए नहीं। हम विश्व में कैसे भाईचारा बढ़ाए, सद्भावना बढ़ाए, उसमें हमारी नॉलेज सिस्टम कैसे काम किया है और आज कैसे उसको कॉन्टेक्चुअलाइज किया जाएगा, उसके बारे में आप लिखोगे, मेरा ये शुभेच्छा है। आखिर में एक अच्छे विषय को चौहान साहब ने उठाया। मैं रोज एक विद्यार्थी की भूमिका में रहने वाला व्यक्ति हूं मित्रों। मैं स्टूडेंट मूवमेंट से आया हूं, लंबे समय देश की सामाजिक जीवन में भी मिला है। स्टूडेंट एक्टिविज्म करते करते हमको आज 40 साल की सामाजिक जीवन के अनुभव में मैं इस मानसिकता में रहता हूं, जहां भी जाऊं हमारी कोई आलोचक हो तो भी उनसे 2 चीज सीख के आओ। आज तो मेरे को यूजीसी की पुराने चेयरमैन मिले, मैं उनके साथ डिस्प्यूट नहीं करता हूं कि भारत की वे फॉरवर्ड क्या है। उन्होंने कहा अश्विनी आपको बधाई, किताब तो लिखा, लेकिन आगे क्या होगा। मैं उस मत का आदमी हूं, आगे क्या करेंगे बताइए। और एजुकेशन ही गेम चेंजर है, एजुकेशन ही ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, इसमें किसी की सेकंड ओपिनियन नहीं है। और सबने सराहना किया कि अभी की एनईपी इज ए ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजिक वेपन, इसमें किसी की दो मत नहीं है। लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने में 2 एस्पेक्ट है। एक, क्या सिर्फ ये देखो सरकारों की स्पेंडिंग की अपने आप में एक लिमिटेशन है। देखिए भारत की अर्थनीति ऐसे ही स्मूथ नहीं है। अब दुनिया की डेवलप अर्थनीति और भारत की अर्थनीति, मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इमर्जिंग इकोनॉमी के साथ भारत को तुलना मत करिए। भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, हम डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं हुए हैं। हम विकसित भारत बनने की 25 साल की रोड मैप में चलना शुरू कर दिया अमृतकाल में। आज लेकिन हम विश्व की इस विषम परिस्थिति में भी हमारे जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है, प्रजातंत्र में राजनीतिक प्रतिपक्ष कुछ विषय पे टिप्पणी करे उसको मैं सहजता से लेता हूं, लेकिन मैं जिम्मेदारी नहीं है जहां इतने चुनौती के बाद इसको इतना स्मूथली ट्रांजिट कराए। इसकी कॉस्ट है। पिछले दिनों में इंडियन गवर्नमेंट की बजट से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की कैपेक्स खर्चा करके इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी को चलाने के लिए कभी चुनौती नहीं था। आज मौका, हमको जरूरत करना पड़ा, हमारी जरूरत थी। दुनिया के लोग अपने बचत को, अपने सेविंग्स को, अपने इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी को क्लोज हैंड करके, क्रॉस फिंगर करके बैठ गए। क्या होगा आगे? मेरे पैसा तो खराब नहीं हो जाएगा, लेकिन उस समय में एक सेंसिटिव जिम्मेवार सरकार की दायित्व तो क्या होती है? लोगों को भूखा नहीं रख सकते, काम करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनानी पड़ेगी। आज हमने किया, इसको आगे भी करते रहेंगे, एजुकेशन की स्पेंडिंग को भी बढ़ाते रहेंगे। पिछले बार मैं काम की जिम्मेवारी लेने के बाद मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, पहली बार 1 लाख करोड़ रुपया की बजट आउटले एजुकेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखा, अलग राज्य सरकारों ने। ये आज जीडीपी की 6% स्पेंडिंग की टारगेट बेंचमार्क से आज हम लगभग 4+ में पहुंच चुके हैं। 4.3 समथिंग हम आज आए हैं। ये सफर पूरा करना पड़ेगा, इसकी जिम्मेवारी भी मैं लेता हूं। लेकिन सिर्फ स्पेंडिंग इज ए मेजर इशू, रिसर्च इज ए मेजर इशू। हम लंबे समय तक कंज्यूमिंग इकोनॉमी नहीं हो सकते हैं, उसमें रोजगार नहीं होगा, उसमें
बिग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी जब तक हमारी इनोवेशन, हमारी रिसर्च, हमारी इनोवेशन, हमारी एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबल मार्केट में प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं जाएंगे, तब तक हम बड़ा इकोनॉमी नहीं बन पाएंगे। इसको मैं जानते हुए इस चुनौती भरा सिचुएशन में एनी पीक में बड़ा आशावादी हूं। इसको सफल करना पड़ेगा, सोसाइटी की भागीदारी से करनी पड़ेगी, न्यू मॉडल से करनी पड़ेगी। निराशा की कोई कारण नहीं है। हमारी संसाधन की सीमा रहने के बावजूद आज 5G टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हमारी IITs ने लाया है, C.DOT ने लाया है। BSNL को हमने 1,60,000 करोड़ रुपया खर्चा करके रिवैम्प करके उन्हीं के माध्यम से भारत में एक नया स्वदेशी 5G टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करेंगे और इसी मॉडल को हम देश विश्व की इमर्जिंग एरिया में अफोर्डेबिलिटी के साथ ले जाएंगे, तब हम प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी हो पाएंगे। हमारी एग्री प्रोड्यूस, हमारी फूड प्रोसेसिंग की वैल्यू एडिशन, इसमें बिना रिसर्च किए, बिना नॉलेज लेवल बढ़ाते हुए हम ग्लोबल मार्केट को छू नहीं पाएंगे। हम जानते हैं काम करना पड़ेगा, उसमें से भारत की उद्योग को उसमें से जुड़ना पड़ेगा। विश्व भर में इंडस्ट्री, पॉलिसी और एकेडेमिया की एक सिनर्जी है। भारत में सारे कामों की बिखराव है, इसमें और सिनर्जी लानी पड़ेगी। कोलैबोरेशन बिल्कुल ही उत्तर है। हम आज विश्व की बड़े बड़े विश्वविद्यालय हमारे देश में आए, हम उसमें आशावादी हैं, इसलिए हमने अपना पॉलिसी को सुधारा है। लेकिन इसकी यह अर्थ नहीं कि हमारी इंटरनल कोलैबोरेशन नहीं हो रहा है। मैं जम्मू में IIT की लोकार्पण उस समय गया था। मेरे को सुखद आनंद हुई जब मैंने देखा एम्स जम्मू और IIT जम्मू और IIM जम्मू तीनों मिलके, क्योंकि आज चिकित्सा सेवा में, हेल्थ केयर में मशीन की रोल बढ़ गई है। डायग्नोसिस करने का सारे काम मशीन करता है, टेस्टिंग का और डायग्नोसिस का 30-40% काम डॉक्टर्स करते हैं। उस समय में इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन दोनों की कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ी है। सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिसिन इलाका में नहीं, दुनिया की जो नया टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या आ रही है, उसकी हमारी IIT और हमारी ह्यूमैनिटीज की यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेटिव काम होने की आवश्यकता है। भारत की नॉलेज, हम सब जो यहाँ बैठे हैं, कोई विदेश की विश्वविद्यालय में थोड़े दिन पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए गए होंगे, लेकिन हमारी फंडामेंटल्स वहीं से बनी है। इसलिए हमें पब्लिक हेल्थ की इतनी बड़ी कोलैबोरेशन की मैं संभावना दिखता हूं। ये कभी था आजादी की पहले कलकत्ता में एक इंस्टीट्यूट में भी गया, IICB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। उस समय के नेशनल लीडर्स ने अंग्रेजों के समय में अपने नौजवानों को कहा, वैज्ञानिकों को, कि भाई देखो शायद ये आएगा, आजादी कुछ दिनों के बाद मिल जाएगा, हमारे देश में मेडिसिन बनाने की कैपेसिटी हो जानी चाहिए। आजादी की पहले कॉलोनी के अंदर भारत की वैज्ञानिकों ने, नौजवान वैज्ञानिकों ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी के एनविजन किया, वो आज चल रहा है। मित्रों, इस देश में फंडामेंटल्स ऐसे सोचने का है। कभी कभी विस्मृति होती है, कभी कभी डीप्रायोरिटाइज होती है, लेकिन मैं इसमें डॉक्टर चौहान के साथ, प्रोफेसर चौहान के साथ सहमत हूं। इसमें एक क्षण भी विलंब नहीं करनी चाहिए। मैं उस मत का नहीं हूं, कभी डिस्क्रिमिनेशन के मेरे मन में नहीं आता है, क्योंकि लंबे समय तक हम इस विषय पर रहे, क्योंकि हमारी फंडामेंटल्स में एजुकेशन कैन नॉट बी ए कमर्शियल कमोडिटी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली भारत की 40% स्कूल सिस्टम प्राइवेट सेक्टर में है। एक सब्सटेंशियल हायर एजुकेशन की सिस्टम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पास है। हम आंख बंद करके सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को आइसोलेशन में नहीं डाल सकते हैं, कि आंख बंद करके उनकी मोनोपोलिस्ट अप्रोच को भी चुप नहीं रह सकते हैं। एक बैलेंस की ओर जाना पड़ेगा। एक सरकारी इंस्टीट्यूशन है, इसलिए वो जो चाहे ठीक कर रहा होगा, ऐसे नहीं मानता।
आज चैलेंज है कि हमारी 21st सेंचुरी में हमारी डोमेस्टिक पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, ग्लोबल कम्युनिटी की क्या रिक्वायरमेंट है। हम ग्रीन एनर्जी के बारे में बात कहते हैं, हाइड्रोजन एनर्जी में भारत डिजिटल इकोनॉमी टाइप की लीडरशिप पोजीशन में जा सकता है, जा ही रहा है, क्योंकि कई सारे नेचुरल एडवांटेज हमारे पास है। हमारी नॉलेज लेवल, हमारी अफोर्डेबिलिटी दोनों आज ग्लोबल कॉम्पिटिटिव पोजीशन पे है। कहां कहां लिवरेज कर सकते हैं लिमिटेड संसाधनों के अंदर। इसके अर्थ नहीं कि इसमें से जीडीपी में स्पेंडिंग ना बढ़े, मैं इस मत का नहीं हूं, और मैं तो इस मत का हूं कि ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। लेकिन हमें 21st सेंचुरी में ग्लोबल कम्युनिटी की जिम्मेवारी लेने की विजन रखनी चाहिए। कौन सी इलाका में हम स्ट्राइक कर सकते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट आने वाले 100 साल के लिए क्या करें, तब एक सिविलाइजेशन नॉलेज सिस्टम की मैं जी की साधु काम के प्रशंसा करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आप सब लोग आए। और ये विद्वत सभा की जो अपेक्षा है भारत सरकार की शिक्षा विभाग की जिम्मेवार व्यक्ति के नाते, उस अपेक्षा को मैं विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं, उसी दिशा में आपकी परामर्श से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। आपकी एडवाइस, आपकी कंसल्टेंसी हमारे लिए सर्वोपरि है, और आप ऐसे ही भारत सरकार के साथ जुड़े रहें। बहुत धन्यवाद। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई नाउ कॉल अपॉन डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस to give the vote of thanks. Thank you so much, and I'm so honored to have all of you here today for this launch. First and foremost, my really heartfelt gratitude to the Honorable Minister of Education, Sri Dhrmendra Pradhan ji, for coming. And I know he has a busy schedule, and he's come for this book, even despite, I'm generally involved in the rankings. This has nothing to do with rankings. It's my passion to support nation building and to give back to my motherland. So thank you so much, sir, for sparing your time and coming here. Also to our guest of honor, Shri Dr. Pankaj Mittal ji, the Secretary General of Association of Indian Universities, for sparing her valuable time. I know she's been busy traveling as well with the AIU conferences, so thank you so much for coming. Also to Professor Virendra Chauhan, he has a commitment, but he's made it here today. I'm so honored to have him and his expertise from prior when he's been with NAC and UGC. I'm honored with all his kind words as well. And to Professor C. Rajkumar, founding Vice Chancellor of OP General Global University, for his critical review of the book, because I thought who else better to give me a critical review than Professor Raj, who does a lot of reading and is in the law space. So we will have an impartial review of the book there. And to all of you, ladies and gentlemen who have come here from various universities, the press, the television channels, and everybody else, dear friends, family, and those watching online as well, thank you so very much for tuning in. We hope that you will stay with us. As we bid adieu to the minister as he goes out, we will continue for the next hour on deliberating on the future, and the panel will be moderated with all of you involved in this panel with Dr. Pankaj Mittal and Professor C. Rajkumar, and we'll take it forward. I would like to again thank the Minister for coming here. After we finish the panel or the meeting with all of you, we'll then go for high tea and book signing on the upstairs floor. Thank you so very much. Ladies and gentlemen, we bid goodbye to the Honorable Minister. He remains seated for the next part of the program, which is a panel discussion.
Esteemed guests, ladies and gentlemen, I now invite you to the institutional leaders